Hello students. So your exam is around the corner, the most awaited exam of this session, like your BMS exam, Shahid Sukhdev, which you aspire for, and then IIPM Indore exam is there. Now both the exams are set to be held at different sessions, different computer centers across the state. So you will have to go there and do these exams. So perfectly all right. So hope it will all be safe for you. So you go and do it. Now then, as we have got 4 or 5 days left with us to prepare for, so what is the thing we really need to do to assimilate the whole information? So that's why I've tried to give you a few tips on this. So without wasting time, let's do one thing is, you can, I say, revise all the assignments done at coaching. Whatever coaching you were, you must have done a few assignments. Kindly revise all of them. I am talking about English only. Rest you can understand it accordingly what I say about English. Like you revise the whole thing, whatever the vocabulary, synonym, antonym, idiom, phrase, reading comprehension. Also you see what was the clue there in the reading comprehension, why my answer was D and why it was C. Once you revise it, it will be there. So in exam, that strategy may help you there. Revise them. It will not take much time, but revision will definitely help you build your confidence. Okay? And then revise word power made easy. If you have done this book, then only you revise the whole book. Now you can revise through your books. I prefer that. But if you want to go through my videos also, that will also do the same, because I've already made a concise explanation of the whole thing. You have to revise this. Now once you revise this, you will have 1,000-2,000 words ready with you, because you're not going to forget them in 4 days. So revise them. This will be handy at exam. And write in. There will be definitely 2-3 questions from this book only. Write in your notebook. Make it a note. Okay? And then third, if you're done word power made easy, you will revise. I say watch videos on my channel. I will say like that, because these videos you must have seen, or you have been with me in the live classes. To revise, what you have to revise is, I say, you revise idioms and phrases. A few videos I have already uploaded there. Then you can revise mnemonics wala videos there. There are 1 or 2 reading comprehension videos are there. Okay, there is one video of 2 or 3 videos of there on subject verb agreement. It is a must watch, which you should do. Okay, so these are the 4 things which will fetch you a few good marks there. Reading comprehension, subject verb agreement, mnemonics and idiom phrases, and one, if you can see, we have done 1 or 2 odd classes on spotting errors. Revise this. Once you are revising, I think you will have data stored with you. Okay, I have to do this question this way. That is the vocabulary. Okay, yaar, ye answer ho sakta hai, ye answer ho sakta hai. That will help you. Okay. And fourth, I am going to take today's second, third, fourth, fifth. I will have 1 class every day on BMS level. ठीक है, तो इसमें कुछ मॉक मैं आपको करा देता हूँ, 2 या 3 पेपर एक दिन में करा देता हूँ, तो आपका कुछ बन जाएगा. BMS पेपर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट द एजेंडा इज देयर विल बी 25 क्वेश्चंस. मैं मानता हूँ कि आपका कम से कम 22 प्लस आना चाहिए इसमें. 17 इज द मिनिमम विच इज डिजायर्ड फ्रॉम यू, बट आप में कैलिबर है. आई हैव बीन विद यू पीपल, many of you have been in my classes. I've seen you have the potential. अगर आप बच्चा अच्छा करेगा, I know the student जिनके 25 out of 25 आए हुए हैं. 22 प्लस तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं 22 प्लस कह रहा हूँ.
इतना आपका आ सकता है, पेपर कंफर्टेबली इजी आता है। ओके, आपने IIPM वाला पेपर भी देखा था, रोहतक वाला, और आगे पीछे सिम्बॉसिस वगैरह भी दे चुके हो, यू नो ए बिट अबाउट दैट। दिस इज कंफर्टेबल पेपर। ओके, यू हैव टू अटेम्प्ट, यू हैव टू स्कोर मिनिमम दिस। आप ये मान के चलिए कि मैं इसके लिए फाइट कर रहा हूं, और इसको फाइट करने के लिए आपको ये रिवीजन कर लेना है। 4 दिन आपके पास बचे हैं। 4 वीडियोस मैंने बनाई थी आपके लिए वर्ड बार मेडिजी की, तो 4 दिन में रिवाइज हो जाएगी। थोड़ा सा आपका स्टडी मटेरियल रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा आप क्या नाम है ये वीडियोस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, स्पॉटिंग एरर की, ये सब आप रिवाइज कर लीजिए एंड अटेंड ए फ्यू क्लासेस बट आई एम गोइंग टू टेक दीज 3-4 क्लासेस। आई थिंक दे विल हेल्प यू preparing your English subject, I think so. Okay, that is the agenda for revising these 4 days. Apart from this, I would like to guide you a bit that how to attempt this paper in exam, because जो पिछली बार IIPM का पेपर हुआ आपको मालूम है आपने कैसे दिया था। You had plenty of time to do whatever you wanted, but here you will not have time. So what is the way we really need to score and what is the safe score we really need to have? I will talk about this. Give me a minute. Kindly note this if you wish. पहले मैं बात करता हूँ BMS एग्ज़ाम के बारे में, फिर IIPM के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा फॉर श्योर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है पेपर क्लैश हो रहा है तो BMS प्रेफर कर रहे हैं। BMS में आपको पता है 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन आएगा, ये आपको जानते हैं, और दिस विल बी 2 hours एग्ज़ाम। It means you have 120 minutes with you. Plenty of time to do this paper. Plenty of time, I will say, huge time you have. Now, 25 questions each section, मतलब overall आपके पास 100 questions हैं। अगर आप ये मान रहे हो कि मुझे 100 क्वेश्चन करने हैं 120 मिनट्स में, तो शायद आपका BP बढ़ सकता है। आपको लगेगा नहीं जी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन है, आप अपना BP बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ाइए, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। स्टिल लेट्स हैव अ रैशनल थिंकिंग टू दिस। ओके, इसमें देखिए GK सेक्शन आएगा 25 क्वेश्चंस के साथ, इंग्लिश सेक्शन आएगा 25 क्वेश्चन के साथ, रीजनिंग आएगा, यू नो इट वेल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बट फिर भी लिख रहा हूँ, और मैथ्स आएगा। काफ़ी सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं कि सर क्या करें, ये करें वो करें। नेचुरली प्रेशर हो जाता है, क्योंकि इस बार कोई स्कूल के टीचर नहीं है आपके पीछे, इस पर खुद प्रिपेयर करना है, तो इसलिए आपको टेंशन ज़्यादा हो रही। देखिए क्या 25 क्वेश्चंस, मैं कहता हूँ कि अगर हम एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चंस करने हों GK के, तो एक स्टूडेंट को 25 क्वेश्चंस करने में कितनी देर लगती है भाई? अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकेंड लगेंगे, 25 क्वेश्चन करने में 250 सेकेंड्स लगेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ने में सोचने में टाइम लग जाएगा, या 5 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। आई आस्क्ड मैनी, और मैं हर साल ये पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कि इसमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। GK के सेक्शन में सेक्शन अलग अलग नहीं आता है, BMS के पेपर में सब कुछ मिक्स आता है। आई विल कम टू दैट, बट अब मान लूँ कि अलग अलग सेक्शन हैं, तो क्या GK के सेक्शन में 25 क्वेश्चन करने में मुझे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके, इंग्लिश में 1 RC आएगा, और 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो कैप के होंगे, या वो स्पेलिंग के होंगे, या व्हाट डू यू कॉल एनालॉजी के हो सकते हैं, ठीक है, या ईडियम फ्रेज के होंगे, इसी तरीके के होंगे, या कुछ फिलर्स हो सकते हैं। 20 क्वेश्चन करने में अब मैं पूछता हूँ इसका सिनोनिम बताओ और इसका एंटोनिम बताओ, और वो अगर आपको सिनोनिम और एंटोनिम नहीं आता है तो आप क्या करते हो? अगर मैंने पूछ लिया कि यार कॉन्सिपिक्यूअस का सिनोनिम बताओ, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, और कॉन्सिपिक्यूअस का सिनोनिम नहीं आता, आप एक बार ही देखोगे, नहीं आता तो फिर भूल जाओगे, आप अटेम्प्ट तो करेंगे नहीं, बिकॉज रिस्क लेना इसमें इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मैं आई टेल यू वन थिंग, इंग्लिश में अगर आप फीलिंग से कुछ करोगे इट विल बी डिवास्टेटिंग। काइंडली डोंट डू दैट, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। उतने ही करिए जो आपको आते हैं, गट फीलिंग से मत करिए कि ये लग रहा है, वो लगने में मेरे भी बहुत गलत होते हैं। लगने वाला तो कोई इंग्लिश में क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए। जब भी आप लगने वाला करोगे, अगर आप बी लगाओगे तो सी आंसर होगा, गारंटेड है। बहुत बार आपको, दिस इज ए ट्रेचरस लैंग्वेज, इसलिए डोंट टेक चांसेस विद इट। ओके, तो आपने एक वर्ड देखा, उसने ईडियम फ्रेज दे दी है, उसने कहा कि इसका मीनिंग बताइए, और उसका मीनिंग आपने देखा, आप देख रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, नहीं लॉजिक बैठ रहा है, छोड़ दोगे। तो लॉजिक लगाने में कितनी देर लगेगी यार? 30 सेकेंड। और कितनी देर लगा लोगे?
मेरे हिसाब से ये 20 क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट लगेंगे और एक रीडिंग कॉम्पिटिशन करने में 10 मिनट लगेंगे. यू नीड 20 minutes to do this paper. I still say you take 25 minutes. Safe. You have taken 10 minutes. 35 minutes you have taken. Now you have left with 25 questions, 25 questions. रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लग जाएंगे. ओके और बाकी जो टाइम बचेगा वो आपके मैथ्स के लिए है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, जो आपको आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, क्योंकि मैथ्स तो आपका बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है. उसी में तो आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं 12th क्लास में, और सबसे ज़्यादा ट्यूशन आपने मैथ्स की पढ़ी थी. नंबर चाहे आपके BST में आए हो, इको में आए हो, अकाउंट्स में आए हो. आई एम नॉट अगेंस्ट मैथमेटिक्स, बट आई एम रियली अगेंस्ट योर पागलपंती वाला जो पैशन होता है, मेनिया अबाउट मैथमेटिक्स. बट आई से 10 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 30, 30, 60 and 10, 70, 65 हुए, बट मैं 70 मान लेता हूँ. 70 मिनट्स आपने इसमें लगा दिए हैं. आपके पास 50 मिनट बचे हैं इसको करने में. ठीक है. अब बड़ी बात यह है कि 25 क्वेश्चन में से आप 25 क्वेश्चन तो एग्जाम में अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, आपको आते ही नहीं होंगे. आई एम नॉट सेइंग एक्सेप्शंस, सॉरी, कोई देख रहा हो तो बुरा ना मान जाए, लेकिन आउट ऑफ 25 और इस 18 ईयर स्टूडेंट 25 में से 25 करना विल बी अ फ्यू ऑड केसेस. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव द एबिलिटी टू क्रैक अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस. यानी आपने 5-7 क्वेश्चन तो छोड़ने ही है ना यार, छोड़ने बनते ही हैं. जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो लेंदी क्वेश्चन होता है, उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं. क्वांट वाला क्वेश्चन जो सेटल्स होते हैं, देखते ही पता चलता है यार क्या है. जो सेटिंग डक है उसको तो कर ही लेता है आदमी. क्वांट वाले क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी होते हैं. अब स्पीड डिस्टेंस का होगा, रेशो प्रोपोर्शन का होगा, उसमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, कितने की चीज़ खरीदी, इतने की बेची, कितने % हुआ, उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है. बट कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देख कर हो जाते हैं, तो वो कम से कम 25 में से 10 क्वेश्चन तो होंगे ही ना. 5 क्वेश्चन में जोर लगाओगे. दैट्स व्हाट द केस इज. इसका मतलब ये हुआ कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस में से आप अप्रॉक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. आई विल से लाइक दैट, जो आपका लेवल है. बिकॉज द रीजन, ये 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग के इंग्लिश के हैं, इसमें भी तो 2-4 सिनोनिम एंटोनिम में धोखा लग सकता है, एक आधी इडियम फ्रेज में धोखा लग सकता है. नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 22 तो आ सकते हैं, लेकिन एवरेज की बात कर रहा हूँ. व्हेन यू से 17, तो 17 वाले केस में क्या होगा? 17 वाले केस में अगर मैं मानता हूँ कि इस 25 क्वेश्चन में से आपसे एक्सपेक्टेड है कि मैंने कहा कि 22 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके, मैं ये मान रहा हूँ कि आप 22 का कैलिबर रखते हो, तो मिनिमम 17 चाहिए ना. तो यानी 2-4-5 क्वेश्चन छोड़ भी देगा आदमी. 5 क्वेश्चन मैथ्स के भी छोड़ोगे आप, 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के भी छोड़ोगे आप. 5 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दो, 5 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दो, 5 क्वेश्चन यहाँ छोड़ दो, 10 क्वेश्चन यहाँ छोड़ने पड़ेंगे अगर आप पुअर हैं तो यार ये 25 क्वेश्चन तो निकल ही गए. ये तो डू नॉट अटेम्प्ट हो गया. तो यानी अपने 75 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए आपने, जो आपको आते थे एज पर योर विजडम, जिसमें आपने चांस नहीं लिया, आपने बढ़िया तरीके से करा. हो सकता है आप जीके में 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दो तो मैथमेटिक्स में 1-2 क्वेश्चन गलत कर रहे होगे. हो सकता है कि आप रीजनिंग में 5 क्वेश्चन बढ़िया कर दो, इंग्लिश में आके पीछे कर दो. मोटा मोटी आप 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और ये 75 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं 2 आवर्स में. 50 मिनट आपको मैथ्स के लिए मिलेंगे, 50 मिनट मैथ्स के लिए मिलेंगे. आई गारंटी यू ऑन दैट. मैंने आपको 30 मिनट रीजनिंग में दिए हैं, 5 मिनट एक्स्ट्रा याद दिए हैं. 20 मिनट लग रहे थे, मैंने 25 मिनट आपको दिए. ओवरऑल मैंने 30 मिनट्स लगाए आपके लिए. इट मीन्स यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू रियली डू दी सेक्शंस. इट मीन्स मैं मान रहा हूं कि जीके का 10 मिनट, इंग्लिश का 25 मिनट, हायर एंड पे लगा रहा हूं. मैंने कहा था रीजनिंग का 30 मिनट, और इसका मेरे पास 50 मिनट. यही है. तो कितना आपके पास हो गया? 115 मिनट. अभी भी आपके पास 5 मिनट स्पेयर हैं, और इससे कम ही लगेंगे क्योंकि ये 100 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन है. आपकी कैलकुलेशन 75 क्वेश्चंस पर बनेगी. इट मीन्स यू विल हैव स्पेयर टाइम. ओके. अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जाकर पेपर में आप जैसे पेपर खोलोगे, आई विल टेक 1 शीट जो आपको मिलेगी
उसमें मैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मार्क कर लूँगा 100 तक, और हर एक क्वेश्चन को खोल के देख लूँगा कि यार ये पहला क्वेश्चन मैथ्स का है, दूसरा इंग्लिश का है, तीसरा मैथ्स का है, फिर रीजनिंग का है, फिर इंग्लिश का है, फिर जीके का है। एक बार मैं मार्क कर लूँगा। इस सारे के काम को करने में मुश्किल से 5-1 मिनट लगेंगे यार। क्वेश्चन खोलना है, पर देखना है क्या क्वेश्चन है। अच्छा मैथ्स है, अच्छा रीजनिंग है, अपना जीके है। और यू विल फाइंड आई से जीके के क्वेश्चन मैक्सिमम और इंग्लिश के क्वेश्चन मैक्सिमम एट वन प्लेस ही होंगे। बीच में हो सकता है ऑड केस हो सकता है 1-2 आगे पीछे हो, लेकिन आपको इंग्लिश के तकरीबन एक जगह मिलेंगे, जीके के भी तकरीबन एक जगह मिलेंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएं, मैथ्स में ट्रबल कर सकता है, वो बीच बीच में ले आएगा। तो एक बार अभी डेटा बना लो ना यार, एक बार डेटा बना लो तो आपके सारे क्वेश्चन खुल जाएंगे। आपने जो 5 मिनट यहां पर स्पेयर लिए थे, इसमें 5 मिनट और जोड़ लो, यानी 10 मिनट आपको चाहिए टू हैव अ ग्रिप ऑन द सिचुएशन। आप क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ हैं। आपको बस मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से। ऐसे फटाफट से आप एक बार खोलो, देखो आराम से। अच्छा कौन सा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 बना लीजिए। कितनी देर लगेगी? आप अभी मॉक करिए घर पर, उससे भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 4 दिन में आपके पास कम से कम 10 मॉक कर सकते हो। आप अटेम्प्ट करिए। एक बार आपके पास डेटा आ गया तो सबसे पहले ऐसे सबसे पहले व्हाट यू शुड अटेम्प्ट। आपको सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए? सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, आई विल से, सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना चाहिए जीके, फिर आपको करना चाहिए इंग्लिश में पहले वोकैब करो सारी की सारी, प्लस आरसी करो। अगर आपको लगता है आरसी बहुत ही अनरीजनेबली लंदी नहीं है तो निपटा लो इसे यार, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। घड़ी आपके सामने है, देखकर करना हो जाएगा। उसके बाद आप रीजनिंग करो और फिर आप करिए मैथ्स, बिकॉज इफ इट इज योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मान लो, तो यू मस्ट गो टू योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट इन ए स्ट्रॉन्ग फैशन, where you have the full focus, where you know that how many questions you have attempted correct. If you know कि यार जीके में मैं 15 क्वेश्चन ठीक कर चुका हूँ और इंग्लिश में मेरे 20 क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं और रीजनिंग में मुझे 20 क्वेश्चन ठीक कर चुके हैं, 40 रुपये 50 और 55 क्वेश्चन ठीक कर चुका हूँ, मुझे बीएमएस एग्जाम करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन और ठीक करने हैं। 55 और 15 कितने होते हैं? 70 क्वेश्चन कर दोगे तो 7 चौक 28, 280 क्वेश्चन, 280 अगर आपका स्कोर आ जाता है तो इसका मतलब बात बन जाती है, ठीक है। तो इट मीन्स नाउ इफ यू डन दिस, तो जब आप यहां आओगे तो मैथ्स में आपको कंफर्टेबल रहेगा कि हाँ यार मुझे मैथ ही करना है, बस 50 मिनट हैं, जो इजी क्वेश्चन हो छाट लो फटाफट, और जो कोई मुश्किल हो तो कर लो। बाकी एक बार टाइम बचा है तो आ जाओ, इंग्लिश देख लो, जीके देख लो। जीके में आप कुछ कर तो पाओगे नहीं, इंग्लिश में कुछ कर तो पाओगे नहीं, जो एक बारी करके चले गए। और अगर आपने ये पूरा का पूरा एक बनाया था अपने पास स्टैटिस्टिक्स, तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे तो यहां भी मार्क कर लोगे, या हो सकता है कोई आपका डाउट वाला क्वेश्चन होगा तो आप सर्कल मार्क करोगे, ये ऐसे बाद में आके देखूंगा। इट इज हैंडी, तो मेक अ शीट लाइक दैट विद यू, दिस विल प्ले वाइटल रोल। अभी आपके पास 5 दिन हैं, आप अपने घर पर 4-5 दिन हैं, इसमें आप ट्राई करिए, ओके। तो ये सारा आपने अटेम्प्ट कर लेना है। माई सजेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक दिस शीट, ए वर्क ही है, ठीक है। देन बी वर्क इज दिस, बाकी सी वर्क इज सबमिट करना है, उससे पहले रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन छोड़े होंगे वहां आकर चेक कर लेना, कौन से छोड़ रखे हैं वहां आ जाना और अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जीके इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल, जिसके बारे में आप जानते हो, हमने नहीं कहा या कहा, आपको पता है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। जीके 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, यही आपको माइलेज दिलाएगा। जब किसी के 310 या 320 आए होते हैं ना बीएमएस में, वो जीके के बिना नहीं आए होते, सारे मैथ से नहीं आ सकते, ठीक है। तो जीके विल प्ले ए वाइटल रोल, जितनी आपको आती है। हालांकि बिजनेस जीके आती है, नॉर्मली ऐसे स्टैटिक जीके तो वो नहीं पूछते, मोस्टली नहीं पूछते, पूछ भी सकते हैं, उन्होंने लिखकर नहीं देखा, नहीं पूछेंगे। बट बीएमएस एग्जाम में मैनेजमेंट का है तो नॉर्मली इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो पूछेंगे। तो आप जो मैंने बताया है इस तरीके से अटेम्प्ट करिए। मोर ओवर पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी रैंक आएगा
रैंक 3000 तक आपको रैंक वो देगा, और 3000 तक रैंक आने में कहीं ना कहीं BMS BB कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ, टॉप रैंक लाने के लिए, शहीद सुखदेव लाने के लिए आपका रैंक अराउंड 150 से नीचे नीचे आना चाहिए। अगर आपको शहीद सुखदेव चाहिए, जनरल कोटा की बात कर रहा हूँ, कोटा इज़ अ डिफरेंट किस इशू, लेकिन अगर आप जनरल कोटा के स्टेटमेंट में सेगमेंट में लाई करते हो तो आपका इतना आपको चाहिए होता है, ठीक है। और उसके लिए आपको IMS ने भी बताया था, हमने भी बताया कि 280 290 हो जाएगा। अब रही बात कितने तुक्के लगा सकते हैं, लोग कहते हैं जी गेस कितने करें। अगर आपने 70 क्वेश्चंस ठीक कर लिए हैं ना ऐसे, अगर आपने 70 क्वेश्चंस ठीक कर लिए हैं ऐसे, अगर आप 70 क्वेश्चंस ठीक कर सकते हो और आपको पता है, तो 8 क्वेश्चंस में आप चांस ले लो, और वो क्वेश्चन में चांस लो जिसमें आप काफ़ी श्योर थे लेकिन थोड़े टेंटेटिव थे। तो अगर 8 में से अगर आपके 2 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो यू आर इन सेफ रेंज, और अगर ज़्यादा ठीक हो गए तो प्लस हो जाएगा। लेकिन ब्लाइंड मत लगाना, ABCD मत करना, क्योंकि जितने ABCD करोगे उतने नीचे चलते चले जाओगे, कंपटीशन स्टिफ है। ओके, तो 70 इज दी बेंचमार्क। अगर आप BMS शहीद सुखदेव की बात कर रहे हो, उसके नीचे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अगर आपके 70 क्वेश्चन से लेके अगर 60 क्वेश्चन में भी होगा तो भी आपकी बात बन सकती है। 60 to 70 में आपको BMS ये 3000 रैंक में तो आप आ ही जाओगे। लेकिन बार बार बात शहीद सुखदेव की हो रही है तो उसकी बात कर रहे हैं, या 280 से प्लस आना चाहिए। 280 प्लस आने के लिए आपको 70 क्वेश्चन ठीक करने होंगे। रिस्क कितना लेना है, ये आपका रिस्क वाला सेक्शन है। मैं होऊंगा तो मैं 12 रिस्क नहीं लूँगा, मैं 8 ही रिस्क लूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे टेंटेटिव वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, वो मुझे नहीं आते होंगे, इतना मुझे मालूम है। चाहे वो मैथ्स का लंबा क्वेश्चन हो, चाहे वो GK का क्वेश्चन हो, या चाहे वो इंग्लिश का सिनोनिम एंटोनिम हो। तो आई विल टेक अ बिट ऑफ द चांस, बट आई विल टेक चांसेस ऑन दिस एंड आई विल डू दिस ओनली, बस, इससे ज़्यादा नहीं। ये कोई आपका CBSE एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपके 99 आने हैं। इसमें 70% वाला टॉपर होगा, अब याद रखिए। 70-75% बियॉन्ड दैट नहीं होगा। तो इसलिए आप उसके आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो रिस्क मत लीजिए। बट गॉड फॉरबिड अगर आपके 40 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं फिर तो आप कुछ भी लगाइए, वो आपकी मर्जी है। आई कैनॉट से एनीथिंग इन दैट केस, बट मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस लेवल के हो। यू विल बी फ्लक्चुएटिंग अराउंड 60 to 70। आप अपना विजडम यूज़ करिए, चांसेस मत लीजिए। आई स्टिल से मैक्सिमम चांसेस 8 क्वेश्चन के लेना बनता है, वो भी जो आपको आते हैं, मतलब क्वाइट श्योर होते हैं, उसी के लेना चाहिए। और लास्ट बात ये, आप जाएं सेंटर पर। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, जब मैं कैट के एग्ज़ाम दिलाने के लिए अपने बच्चे के साथ लास्ट ईयर गया था, जब भी जितने भी ऑनलाइन सेंटर्स होते हैं, वियर मिनिमम, टाई शाई कोट वोट बेल्ट वेल्ट नहीं लग जाइए, पर्स वर्स नहीं लेकर जाइए। काइंडली डोंट टेक एनीथिंग। आपके पेरेंट्स जाएंगे तो उनको बाहर ही रहना पड़ेगा, अंदर कोई प्रोविज़न नहीं होता, सड़क पर ही खड़ा रहना पड़ेगा, कोई प्रोविज़न नहीं है। तो आप गाड़ी में बैठें, सड़क पर बैठें, पेरेंट्स आपकी मर्जी। आप कुछ भी लेके मत जाइए, अपना आई कार्ड और एक आधार कार्ड शायद जरूरत पड़ सकती है, वो कैरी दैट विद यू। ओके, और वो जो आपके स्पेक्टिकल्स हैं, घड़ी पहनकर नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट अलाउड। वो जूते भी उतरवा सकता है, सॉक्स भी उतरवा सकता है। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं चप्पल पहन के जाऊंगा। मैंने कई केसेस देखे हैं, जब मैं लास्ट ईयर अपने बच्चे के साथ कैट के एग्जाम दिलवाने जाता रहा, उन्होंने जूते उतरवा दिए, चप्पल उतार दिए। सर्दी के दिनों में हमें नंगे पाँव पेपर देना पड़ा। आप समझ सकते हो AC रूम में क्या होगा, लेकिन इस पर तो मौसम भी ठीक है, तो ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि आप यू नो व्हाट द केसेस। तो इसलिए आप मिनिमम वियर करिए, जो आपको एक टी-शर्ट पहनी है, लोअर पहनी है, चले जाइए, बस हो गया। वो चेक क्या करेगा, बस आपका चश्मा और आपका आई कार्ड और आपका आधार कार्ड, दैट्स इट। जो उसने आपको दिया रोल नंबर, दैट्स इट। उसका प्रिंट आउट आपके पास है। नथिंग रिक्वायर्ड एंड नथिंग इज यू हैव टू कैरी। वहाँ उलझने की जरूरत नहीं है। गो विद द कूल हेड, वट एवर प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग, यू हैव टू फॉलो द नॉर्म्स। एंड वहाँ पर हैपजार्ड होने की जरूरत नहीं है कि जी ये वो ऐसे वैसे, ठीक है। एंड इट विल बी ईजी, इट विल बी ईजी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि पेपर आराम से हो जाए, और अभी तक रिपोर्ट सही है तो आपके साथ भी कुछ भी अनटूवर्ड नहीं होगा। बस गो विद क्लियर हार्ट एंड विद कूल माइंड, और वो जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से प्लान करिए। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू जस्टिस टू योर पेपर। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।